بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک، سچ دنیا پر ہو گیا آشکار۔ دنیا بھر کے سفیروں کا ایل او سی کا دورہ، زمینی حقائق کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا۔ جوڑا بازار میں بھارتی گولہ باری سے تباہ شدہ دکانیں اور گھر دیکھے، چینی سفیر نے بھارتی شیل ہاتھ میں اٹھایا۔ دہشت گرد کیمپس نہ ہونے کا سچ پوری دنیا کو سنایا۔ No evidence of any terrorist camp in this area. They are all ordinary people. بھارتی ہائی کمیشن اپنے چیف کے دعوے کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دشمن کو آئینہ دکھا دیا۔ غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ میں بتایا 19 اور 20 اکتوبر کو بھاری توپ خانے کا استعمال کیا، شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں صرف مورچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیا بھارت بھی سفرا غیر ملکی میڈیا کو مقبوضہ کشمیر میں ایسی ہی رسائی دے گا؟ ہم نے تو بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیے، لیکن نہ کوآرڈینیٹس فراہم کیے گئے، نہ سفارتکار آئے۔ اس لیے نہیں آئے کہ شرمندگی ہوتی۔ بھارت کا جھوٹ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار شرمندگی سے بچنے کے لیے لائن آف کنٹرول نہیں گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کی آج نیوز سے گفتگو، کہا بھارت مظالم چھپانے کے لیے جھوٹے آپریشن کا بہانہ گھڑ رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت ناساز، سروسز اسپتال میں زیر علاج۔ نواز شریف کو پلیٹلیٹس لگا دیے گئے، وائٹ سیلز کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی۔ نواز شریف کی صحتیابی کے لیے کارکنان کا بکروں کا صدقہ۔ بڑے بھائی کی علالت پر چھوٹے بھائی پھٹ پڑے، شہباز شریف نے طبیعت کی ناسازی کو جیل حکام کی سنگین غفلت قرار دے دیا۔ احسن اقبال بولے نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ مخالفین کی بیماری پر سیاست کرنا تحریک انصاف کا کام ہے۔ کبھی بیماری پہ سیاست نہیں کرتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی بغض عمران پہ، اور انہوں نے اس بیماری پہ سیاست کی۔ حکومت کبھی بیماری پر سیاست نہیں کرتی۔ فردوس عاشق عوام کا جوابی وار، بولی نواز شریف کو گھر سے مرغن غذائیں بھیجی جا رہی ہیں جس سے صحت متاثر ہوئی۔ وزیر صحت پنجاب کا بھی سروسز اسپتال کا دورہ، سابق وزیر اعظم کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ سابق وزیر اعظم کے داماد کیپٹن صفدر ریٹائرڈ عدالت میں پیش، جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی درخواست مسترد۔ محمد صفدر ریمانڈ پر جیل منتقل۔ محمد صفدر کو گزشتہ رات اشتعال انگیز تقریر کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مولانا صاحب اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے، سابق صدر آصف علی زرداری کو یقین۔ کنٹینرز لگ گئے، گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ صحافی کا سوال، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں؟ سابق صدر کا جواب، زرداری کو پرمز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکومت نے خود ہی اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے حکومت پر وار، کہا تمام مسائل کا حل وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے، انہیں ہر صورت گھر جانا پڑے گا، کٹ پتلی حکومت سے لڑیں گے اور جد و جہد جاری رکھیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پہ اور حکومت پہ رابطے، اکرم درانی کا پرویز خٹک اور صادق سنجرانی کو ٹیلی فون۔ پرویز خٹک نے مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا، مشاورت کے بعد رابطے کی یقین دہانی۔ جمعیت علماء اسلام کا اسلام آباد لاک ڈاؤن کا پلان تیار، کارکنان کو 1 ہفتے کا بندوبست کر کے اسلام آباد آنے کی ہدایت۔ کارکنان کو ہتھیار، چاقو، لاٹھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں انٹری 31 اکتوبر کو دی جائے گی۔ عوام کو ڈنڈا بردار افراد کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، وزیر ریلوے شیخ رشید کی گھن گرج، کہتے ہیں مولانا کے غبارے میں ہوا زیادہ بھر گئی ہے، پھٹنے جا رہا ہے، انتشار پھیلانے والوں سے سختی سے نپٹیں گے۔ رانا ثناء اللہ کیس میں اے این ایف کے وکیل پر مبینہ حملہ،
काशिफ जावेद महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ANF हुक्काम ने 3 मुल्जिमान नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 6 नए ऑर्डिनेंस की मंजूरी। वफाकी वज़ीर कानून फरूग नसीम कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का वादा है कि इंसाफ का तेज तरीन हुसूल यकीनी बनाया जाएगा। नए कवानीन से दीवानी और सिविल मुकदमा जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। कश्मीरियों का साथ क्यों दिया? भारत ने मलेशिया के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। भारतीय ताजिरों ने मलेशिया से पाम ऑयल खरीदना छोड़ दिया। महातीर मोहम्मद अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहा सबको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को कर्नल कमांडेंट बलोच रेजिमेंट के बैजेस लगाए, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल भी चढ़ाए। कराची के इलाके गोलीमार पीतल गली में पुलिस मुकाबला, 2 डकैत भाई हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। तीनों भाई जराइम के बादशाह निकले, ACLC के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। आज न्यूज़ ने रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वजीराबाद में डाकुओं का राज, डकैती मुज़ाहमत पर बदतरीन तशद्दुद। 5 बहनों का इकलौता भाई जान से गया। 14 साला सुबहान के कत्ल पर लवाहिकीन और अहले इलाका मुश्तइल। GT रोड ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट में रेबीज वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से मुतालिक केस की समाअत। कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, आप मसला क्यों हल नहीं करते? अदालत की सेक्रेटरी बल्दियात की सरजनिश, कहा गाड़ियां किराए पर ले, कुछ भी करें, कुत्तों के खिलाफ मुहिम तेज करें। तमाम सरकारी अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन की फरहमी और हुकूमत को टास्क फोर्स बनाने का हुक्म। चूनिया में 3 बच्चे पुरस्रार बीमारी में मुब्तला। आज न्यूज़ की खबर पर एक्शन। लाहौर इंतजामिया ने बच्चों के इलाज का बेड़ा उठा लिया। आज न्यूज़ ने मेहनत कश के 3 बच्चों की पुरस्रार बीमारी की खबर नशर की थी। इंटर में पहली पोजीशन लेकर वालिद का नाम बढ़ाया, कामयाबी देखकर वजीर आला ने भी बुलाया। मुराद अली शाह की अखबार फरोश मोहम्मद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब से मुलाकात, किताब तोहफे में दी, शील्ड भी पेश की। Purely a civilian, non-lethal target, non-lethal area, just a normal market area, housing area targeted by allegedly the Indian forces. चीनी सफीर जाओ जंग का कहना था कि यहाँ कोई दहशतगर्द कैंप नहीं है। People are suffering, and that is why this Kashmir dispute is more and more, how should I say, important for the international community to pay attention to, and also to find a peaceful solution. सफीरों को भारतीय तोपखाने के गोले, खोल और टुकड़े दिखाए गए। चीनी सफीर ने भारतीय शेल हाथ में लेकर भी जांच पड़ताल की। दीगर सफीरों ने भी कश्मीरी इलाके में दहशतगर्द कैंप न होने की तस्दीक की। No evidence of any terrorist camp in this area. They are all ordinary people. गैर मुल्की सफीरों को कश्मीरियों ने अपने हिसार में ले लिया। उन्होंने सफीरों के लिए खैर मकदमी जज्बात का इजहार किया और भारत के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान की दावत के बावजूद भारतीय सफारत खाने का कोई अहलकार आजाद कश्मीर के दौरे पर गैर मुल्की सफीरों के साथ नहीं गया। आज भारतीय आर्मी चीफ के झूठे दावे का भांडा फूट गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान, कहा कि भारतीय हाई कमीशन में गैर मुल्की सिफारतकारों के साथ LOC जाने के खिलाफ की जरूरत नहीं। उन्होंने भारत को चैलेंज किया कि वो भी मकबूजा कश्मीर और LOC पर सिफारतकारों और मीडिया को लेकर जाएं, ताकि भारत देख ले कि मकबूजा कश्मीर वालों के दिलों में पाकिस्तान कैसे बसता है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने गैर मुल्की सफीरों और मीडिया को भारतीय जारहियत से आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने 19 और 20 अक्टूबर को भारी तोपखाने से आजाद कश्मीर की शहरी आबादी पर गोलाबारी की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भारत ने 3038 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की।
भारतीय फायरिंग से 58 शहरी शहीद हुए। उन्होंने बताया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दुनिया के सामने भारतीय झूठ बेनकाब हो गया, इसलिए भारतीय सफारतकार शर्मिंदगी से बचने के लिए गैर मुल्की सफीरों के साथ आज़ाद कश्मीर नहीं गए। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मजीद बोले कि भारत महफूजा कश्मीर में मज़ालिम छुपाने के लिए झूठे ऑपरेशन का बहाना कर रहा है। दुनिया की उससे तवज्जो हटाने के लिए उसके लिए उन्होंने अब एक बयानिया घड़ा कि 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया जो लॉन्चिंग पैड थे। तो हमने कहा आइए मौका देख लेते हैं। हम सफारतकारों को वहां ले गए हैं, सफारतकार वहां मौजूद हैं। हमने तो भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को भी दावत दी कि आप भी चलिए, इसलिए नहीं आए कि शर्मिंदगी होती। और दुनिया बतदरीज देख रही है कि मोदी सरकार गलत बयानी से काम ले रही है। और अब बात साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिनकी हालत अब कदरे बेहतर बताई जा रही है। सर्विसेज अस्पताल में उन्हें व्हाइट सेल्स के 3 बैग लगाए गए, जिसके बाद उनके प्लेटलेट्स की तादाद 20,000 तक पहुंच गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर होने लगी, प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफा सामने आने लगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नवाज शरीफ को 2 किट्स लगाए गए, जिसके बाद व्हाइट सेल्स की तादाद 20,000 के लगभग पहुंच गई। नवाज शरीफ के जिस्म से भी किसी किस्म की ब्लीडिंग नहीं हो रही। नवाज शरीफ को अब बुखार भी नहीं और हालत भी खतरे से बाहर है। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने नवाज शरीफ की हालत के खराब होने पर इंतजामिया की गफलत का इल्जाम लगाया। ये बदतरीन गफलत है कि अगर प्लेटलेट ड्रॉप कर गए तो क्यों नहीं इसकी तहकीक की गई। लीगी रहनुमा भी नवाज शरीफ की बीमारी पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हम शदीद मुजम्मत करते हैं हुकूमत की और नवाज शरीफ साहब की सेहत के साथ जो खेल हो रहा है उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान अहमद नियाजी पर प्लेस करते हैं। फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ की अचानक नासाजी दवा ने जहां लीगी क़यादत में परेशानी बढ़ाई, वहीं सियासी सूरत हाल में भी हलचल मचा दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। फैसल तारिक, बताइएगा उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस वक्त जो हालत है वो कदरे बेहतर है। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ को जो है प्लेटलेट्स की कमी के बायस हालत ख़राब होने पर सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जब उनका टेस्ट किया गया तो उसके बाद उनके जो प्लेटलेट्स थे वो सिर्फ 16,000 थे, जिसके बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो 2,000 रह गए थे। अब नवाज शरीफ को एक मेगा किट लगाई गई है, जिसके बाद इसके मुताबिक डॉक्टर के मुताबिक उनके जो प्लेटलेट्स की तादाद है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन 20,000 के करीब। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत में हद बेहतरी आ रही है। और इस वक्त भी थोड़ी देर पहले जो उनके भाई हैं अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से उनसे मुलाकात की गई है। काफ़ी देर वो अंदर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों की आपस में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो शहबाज शरीफ हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो हुकूमत के खिलाफ। उधर फिरदौस आशिकावान ने नवाज शरीफ को जहर देने की बातों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा जहर करप्शन है। वो करप्शन के जहर का शिकार हुए हैं। हुकूमत को उन्हें जहर देने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में मुआविन खुसूसी इत्तलात का कहना था कि अब जर बचाने की नहीं बल्कि जर वापस लाने की हिकमत अमली चलेगी। मुझे पता चला कि निहारी और हड़ीसा और घर के खाने, तो मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि लोप्रीन क्यों ली जाती है। अपना खून पतला करने के लिए लोप्रीन दी जाती है किसी भी मरीज को। तो जब आप अपनी अदाएं नहीं बदलेंगे और 67 साल की उम्र में आपने वही ग़िज़ा रखनी है तो 2 लोप्रीन आपको मिलनी है। तो लोप्रीन जो भी डॉक्टर सुन रहा है, हॉस्पिटल बहुत सारे लोग लोप्रीन पे वो दवाई लेते हैं। सबसे पहला जो उसका खतरा है वो आपके प्लेटलेट काउंट को गिराता है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग उसका साइड इफेक्ट है कि आपका प्लेटलेट काउंट गिरता है।
अभी आपको बताएं कि लाहौर की मकामी अदालत ने मोहम्मद सफदर का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मोहम्मद सफदर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मोहम्मद सफदर को इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। मोहम्मद सफदर के वकील ने अपने मुवक्किल को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए हुकूमत को जुमरात का नोटिस जारी कर दिया है। उधर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को भी पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनके ब्लड प्रेशर, शुगर और कमर की तकलीफ का मुआयना किया जाएगा। एहतसाब अदालत पेशी के दौरान सहाफियों के सवालात के उन्होंने दिलचस्प जवाब दिए। मौलाना साहब के आज़ादी मार्च से कबल गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं, कंटेनर भी लगे हैं। इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। तो आप समझते हैं कि मौलाना साहब अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, मुल्क के तमाम मसाइल इमरान खान के इस्तीफे से हल हो सकते हैं। कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करेंगे और इसे घर भेजेंगे। सब कामों की रुकावट, चाहे वो जमहूरियत का बहाली हो, चाहे वो हमारा मईशत की दुस्समत में लाने का हो, चाहे वो मीडिया का आज़ादी हो, ये सारे के सारे मिसाइल के सामने जो मिसाइल हैं वो इमरान खान है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इमरान खान से इस्तीफ़ा लेता है तो हम इन सारे मिसाइल को एड्रेस कर सकते हैं। मौलाना के गुब्बारे में बहुत ज्यादा हवा भर गई है, फटने जा रहा है। शेख रशीद के मौलाना फजलुर रहमान पर लफ्जी वार, कहा आजादी मार्च वाले बाज आ जाएं वरना कानून हरकत में आएगा। मौलाना गोल्डन टेंपल जा सकते हैं लेकिन मज़ार कायद नहीं। मौलाना को फेस सेविंग देनी पड़े तो देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान पहली दफा सियासी पार्टियों को लीड करने जा रहे हैं। लोगों को डंडा बरदार जत्थों के हवाले तो नहीं किया जा सकता। अगर वो नहीं बाज आए तो ऑफ कोर्स कानून हरकत में आएगा। मौलाना के गुब्बारे में बहुत हवा भर गई है। 10 mg का गुब्बारा था जिसमें 100 mg की हवा भर गई है और ये फटने जा रहा है। वो गोल्डन टेम्पल जा सकते हैं, मज़ार कायद पर नहीं जा सकते। वो गोल्डन टेम्पल के लंगर खानों में भी जा सकते हैं लेकिन इलामा इकबाल के मज़ार पे नहीं जा सकते। मैं इस बात का हामी हूँ कि अगर उनको फेस सेविंग देनी पड़े तो कहीं दे देनी चाहिए।